ની બેઠક ક્ષમતા છે આ હોલમાં. અને આધુનિક સુવિધાઓથી સજ્જ આ વિશ્વ કક્ષાના કન્વેન્શન સેન્ટરનું લોકાર્પણ માનનીય વડાપ્રધાન શ્રીના આશીર્વાદ સાથે થશે. વીર બાળક સ્મારકનું નિર્માણ એ તમામ માસૂમ આત્માઓની યાદગીરીમાં નિર્મિત કરવામાં આવ્યું છે જેમણે વર્ષ 2001ના ગણતંત્ર દિવસની પરેડ દરમિયાન આવેલા ભયાનક ભૂકંપ સમયે તેમનો જીવ ગુમાવ્યો હતો. અહીં 185 રચનાત્મક કૃતિઓ થકી આપ દિવંગત બાળકો સાથેના સ્મરણોને તાજા કરી શકશો. ફિલ્મો, ઇન્ટરેક્ટિવ મોડલ્સ અને સિમ્યુલેટરના માધ્યમથી આ શ્રદ્ધાંજલિ સ્થળ તારાઓની વચ્ચે જાણે માસૂમો હોવાનો તમને અનુભવ કરાવશે અને અહીં આવેલું ગગનચુંબી તેજપુંજ તેમને હંમેશા યાદ રાખશે. આ માત્ર શ્રદ્ધાંજલિ સ્થળ જ નથી, કિંતુ સમાજને ઉત્કૃષ્ટ ભેટ પણ છે. કચ્છ, જેની યશગાથા ગુર્જર ગ્રંથોના પાને અને ભારતીય સૈન્યના ઇતિહાસમાં સ્વર્ણિમ શબ્દે કંડારાયેલી છે, અને આ પુણ્ય પાવન શૌર્ય ધરા કચ્છના રખોપા કરે છે દેશ દેવી માં આશાપુરા. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી જગત જનની જગદંબાના પરમ ભક્ત છે તેમજ શિવના ઉપાસક છે. તેઓની આ પ્રેરણાનું ફળ છે કે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના માર્ગદર્શનમાં ગુજરાત સરકાર તથા પવિત્ર યાત્રાધામ વિકાસ બોર્ડ દ્વારા ગુજરાતના અનેક મંદિરોના જીર્ણોદ્ધાર તથા વિકાસ કાર્યો હાથ ધરવામાં આવ્યા છે. આજે એ જ શ્રેણીમાં વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીના વરદ હસ્તે આશરે ₹32.71 કરોડના મૂલ્યે માતાના મઢના પુનઃ નિર્માણ કાર્યનું પણ ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવી રહ્યું છે. દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી ભારતીય રાષ્ટ્રીય રાજમાર્ગ પ્રાધિકરણના ભારતમાલા પરિયોજના અંતર્ગત ગુજરાતના ભીમાસરથી લઈને ભુજ સુધીના હાઈવેને 4 માર્ગીય કરવાનો આજે પાયો નાખી રહ્યા છે. 59.75 કિલોમીટરનો આ પ્રોજેક્ટ અંદાજે ₹1,373 કરોડના ખર્ચે હાઇબ્રિડ એન્યુઇટી મોડ દ્વારા પૂર્ણ કરવામાં આવશે. ભીમાસરથી લઈને ભુજ સુધીના આ માર્ગને લીધે અજાપર, વરસામેડી, અંજાર, સાપેડા, રતનાલ, ચુબડક, વાવડી, કુકમા જેવા ઘણા નાના મોટા ગામડાઓ અને શહેરોને તેનો લાભ મળશે, જેનાથી અહીંના ઉદ્યોગ, વ્યાપાર અને શિક્ષણના વિકાસને ગતિ મળશે. આજના આ અવસરે થઈ રહેલા આ શિલાન્યાસથી ભુજ અને ગુજરાતની અગણિત પ્રગતિના માર્ગો ખુલશે. રાજ્યના ગાંધીધામ શહેર ખાતે ફાટક મુક્ત ગુજરાત સ્વર્ણિમ જયંતી મુખ્યમંત્રી શહેરી વિકાસ યોજના અંતર્ગત ફાટક નંબર 4C અને 5SPL પર રેલવે અંડરબ્રિજનું કામ અને ગાંધીધામ આદિપુર શહેરમાં ભૂગર્ભ ગટર યોજનાનું ખાતમુહૂર્ત માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના હસ્તે કરવામાં આવ્યું. આત્મનિર્ભર ગુજરાતથી આત્મનિર્ભર ભારતની પરિકલ્પનાને સાકારિત કરતા આજના અનેકવિધ પ્રોજેક્ટ્સના લોકાર્પણો અને ખાતમુહૂર્તથી કચ્છની કાયા પલટની યશ કલગીમાં વધુ એક પીંછનું ઉમેરણ થશે. મઠા કચ્છમાં હવે વધશે અન્ન, ધન, શાંતિ ને હેત ને વધશે દયાભાવ. નવો વરે આંકે ફળે હીજ અસાંજો શુભ ભાવ. વિકાસ કાર્યોની લાણી હવે લખાશે કચ્છના ઉત્કર્ષની નવી કહાણી. આભાર આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી આ ભેટ આપવા માટે. ખમીરથી છલોછલ વ્યક્તિત્વ ધરાવતા આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈને આપણું કચ્છ ખૂબ વહાલું છે. ભૂકંપ પછી કચ્છનું પુનઃનિર્માણ કરવાનું હોય કે નર્મદાના નીરને કચ્છ પહોંચાડવાના હોય, અડગ નિર્ધાર અને અથાગ પરિશ્રમ વડે તેમણે કચ્છી માળુઓના જીવનને નવી ઉર્જા પૂરી પાડી છે. વિભીષિકાના આ વેરાન રણને આંસુનું ઝરણ નહીં પરંતુ મહામૂલા સ્મરણનું મનોહર વન બનાવનાર આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ કચ્છના વિકાસનો નવો નકશો દોર્યો છે. स्वयं को प्रधान सेवक मानने वाले विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आइए जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं कच्छ की धरा पर पधार कर अपने प्रेरणादायी वक्तव्य के लिए।
गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, संसद में मेरे साथी और गुजरात भाजपा के अध्यक्ष श्रीमान CR पाटिल, गुजरात सरकार के सभी मंत्रीगण, सांसदगण और विधायकगण और यहां भारी संख्या में आए हुए कच्छ के मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुंजावाला कच्छी थाने भेणु की आयो मजा में। कच्छ में मी बोरो खासो वठो आए, तेंजो राजीपो आंजे मों माथे डिसाजे तो। साथियों, आज मन बहुत सारी भावनाओं से भरा हुआ है। भुजियो डूंगर में स्मृतिवन मेमोरियल और अंजार में वीर बालक स्मारक का लोकार्पण कच्छ की, गुजरात की, पूरे देश की साझी वेदना का प्रतीक है। इनके निर्माण में सिर्फ पसीना ही नहीं बल्कि कितने ही परिवारों के आंसुओं ने भी इसके ईंट पत्थरों को सींचा है। मुझे याद है कि अंजार में बच्चों के परिजनों ने बाल स्मारक बनाने का विचार रखा था। तब हम सभी ने ये तय किया था कि कार सेवा से इसको पूरा करेंगे। जो प्रण हमने लिया था वो आज पूरा हो गया है। जिन्होंने अपनों को खोया, अपने बच्चों को खोया, मैं आज बहुत भारी मन से इन स्मारकों को उन्हें समर्पित करता हूं। आज कच्छ के विकास से जुड़े 4000 करोड़ रुपए से अधिक के अन्य प्रोजेक्ट्स का भी शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें पानी, बिजली, सड़क और डेयरी से जुड़े प्रोजेक्ट है। ये गुजरात के कच्छ के विकास के लिए डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मां आशापुरा के दर्शन और आसान हो, इसके लिए आज नई सुविधाओं का शिलान्यास भी किया गया है। मातानो मढ़, इसके विकास की ये सुविधाएं जब तैयार हो जाएगी
तो देश भर से आने वाले भक्तों को नया अनुभव मिलेगा। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में कैसे कच्छ आगे बढ़ रहा है, गुजरात आगे बढ़ रहा है, ये उसका भी प्रमाण है। भाई और बहनों, आज भुज की धरती पर आया और स्मृति वन जा रहा था। पूरे रास्ते भर कच्छ ने जो प्यार बरसाया, जो आशीर्वाद दिए, मैं धरती को भी नमन करता हूं और यहां के लोगों को भी नमन करता हूं। यहां आने में मुझे जरा देरी हो गई। मैं भुज तो समय पर आ गया था, लेकिन वो रोड शो में जो स्वागत चला और बाद में मैं स्मृति वन मेमोरियल में गया, वहां से निकलने का मन ही नहीं करता था। दो दशक पहले कच्छ ने जो कुछ झेला और उसके बाद कच्छ ने जो हौसला दिखाया, उसकी हर झलक इस स्मृति वन में है। जिस प्रकार जीवन के लिए कहा जाता है, वयम अमृतस्य पुत्रा की हमारी कल्पना है, चरैवेति चरैवेति का मंत्र हमारी प्रेरणा है। उसी प्रकार से ये स्मारक भी आगे बढ़ने की शाश्वत भावना से प्रेरित है। साथियों, जब मैं स्मृति वन के अलग अलग हिस्सों में गुजर रहा था तो बहुत सारी पुरानी यादें मन मस्तिष्क में आ रही थी। साथियों, अमेरिका में 9/11 जो बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद वहां एक स्मारक बनाया गया है, पॉइंट 0। मैंने वो भी देखा है। मैंने जापान में हिरोशिमा की त्रासदी के बाद उसकी स्मृति को संजोने वाला एक म्यूजियम बना है, वो भी देखा है। और आज स्मृति वन देखने के बाद मैं देशवासियों को बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं, पूरे देश के लोगों को कहता हूं कि हमारा स्मृति वन दुनिया के अच्छे से अच्छे ऐसे स्मारकों की तुलना में एक कदम भी पीछे नहीं है। यहां प्रकृति, पृथ्वी, जीवन, इसकी शिक्षा दीक्षा की पूरी व्यवस्था है। मैं कच्छ के लोगों से कहूंगा, अब आपके यहां कोई मेहमान आए तो स्मृति वन देखे बिना जाना नहीं चाहिए। अब आपके इस कच्छ में मैं शिक्षा विभाग को भी कहूंगा कि जब स्कूल के बच्चे टूर करते हैं, वो एक दिन स्मृति वन के लिए भी रखें, ताकि उनको पता चले कि पृथ्वी और प्रकृति का व्यवहार क्या होता है। साथियों, मुझे याद है भूकंप जब आया था
26 जनवरी का वो दिन मैं दिल्ली में था। भूकंप का एहसास दिल्ली में भी हुआ था और कुछ ही घंटों में मैं दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचा और दूसरे दिन मैं कच्छ पहुंच गया। तब मैं मुख्यमंत्री नहीं था, एक साधारण राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता था। मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे और कितने लोगों की मदद कर पाऊंगा, लेकिन मैंने ये तय किया कि मैं इस दुख की घड़ी में आप सबके बीच में रहूंगा और जो भी संभव होगा मैं आपके दुख में हाथ बटाने का प्रयास करूंगा। मुझे पता तक नहीं था, अचानक मुझे मुख्यमंत्री बनना पड़ा और जब मुख्यमंत्री बना तो उस सेवा कार्यों के अनुभव मेरे बहुत काम आए। उस समय की एक बात और मुझे याद आती है, भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए तब विदेशों से भी अनेक लोग यहां आए थे। उनके इस बात की हैरानी होती थी कि कैसे यहां निस्वार्थ भाव से स्वयं से जुटे हुए उनके धार्मिक सामाजिक संस्थाएं राहत और बचाव में लगी हुई है। और वे लोग मुझे बताते थे कि दुनिया में बहुत जगह पे वो जाते हैं, लेकिन ऐसा सेवा भाव शायद हमने पहले कभी नहीं देखा। सामूहिकता की यही शक्ति है जिसने उस मुश्किल समय में कच्छ को, गुजरात को संभाला। आज मुझे जब कच्छ की धरती पर आया हूं, बहुत लंबा नाता रहा है मेरा आप सबसे, बहुत गहरा नाता रहा है। अनगिनत नामों की स्मृतियां मेरे सामने उभर करके आती हैं। हमारे धीरूभाई शाह, ताराचंद छेड़ा, अनंत भाई दवे, प्रताप सिंह जाडेजा, नरेंद्र सिंह जाडेजा, हीरालाल पारिक, भाई धनसुख ठक्कर, रसिक ठक्कर, गोपाल भाई, अपने अंजार के चंपकलाल शाह, अनगिनत लोग जिनके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करने का सौभाग्य मिला था। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा जहां भी होगी, कच्छ के विकास के लिए उनको संतुष्टि का भाव होता होगा, वो हमें आशीर्वाद देते होंगे। और आज भी जब मेरे साथियों को मिलता हूं, चाहे हमारे पुष्पदान भाई हो, हमारे मंगल दादा नंजी भाई हो, हमारे जीवा सेठ जैसे व्यक्तित्व, आज भी कच्छ के विकास को प्रेरणा दे रहे हैं। कच्छ की एक विशेषता तो हमेशा ही रही है और जिसकी चर्चा मैं अक्सर करता रहता हूं, यहां रास्ते चलते भी कोई व्यक्ति एक सपना बो जाए, रास्ते चलते कोई व्यक्ति एक सपना बो जाए तो पूरा कच्छ उसको वट वृक्ष बनाने में जुट जाता है। कच्छ के इन्हीं संस्कारों ने हर आशंका, हर आकलन को गलत सिद्ध किया।
ऐसे कहने वाले बहुत थे कि अब कच्छ कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन आज कच्छ के लोगों ने यहां की तस्वीर पूरी तरह बदल दी है। साथियों, मुख्यमंत्री के रूप में मेरी पहली दिवाली और भूकंप के बाद कच्छ के लोगों के लिए भी पहली दिवाली, मैंने उस दिवाली को नहीं मनाया। मेरी सरकार के किसी मंत्री ने दिवाली नहीं मनाई थी और हम सब भूकंप के बाद की वो पहली दिवाली अपनों की याद आने की बहुत स्वाभाविक थी। मैं आपके बीच आके रहा और आप जानते हैं, मैं वर्षों से दिवाली बॉर्डर पे जाके, सीमा पर जाके देश के जवानों के साथ बिताते आया हूं। लेकिन उस वर्ष मैंने वो मेरी परंपरा को छोड़ करके भूकंप पीड़ितों के साथ दिवाली मनाने के लिए, मैं उनके बीच रहने के लिए आया था। मुझे याद है, मैं पूरा दिन चौबारी में रहा था और फिर शाम को त्रंबो गांव चला गया था। मेरे साथ मेरी कैबिनेट के सारे सदस्य गुजरात में जहां जहां भूकंप की आपदा आई थी, वहीं जाकर के उन्होंने दिवाली के दिन सब दुख में शरीक हुए थे। मुझे याद है, मुश्किल भरे उन दिनों में मैंने कहा था और बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा था कि हम आपदा को अवसर में बदल के रहेंगे। मैंने ये भी कहा था, आपको जो रण दिखता है ना, उस रण में मुझे भारत का तोरण दिखता है। और आज जब मैं कहता हूं, लाल किले से कहता हूं, 15 अगस्त को कहता हूं कि 2047 भारत डेवलप कंट्री बनेगा। जिन्होंने मुझे कच्छ में सुना है, देखा है, 2001-2 भूकंप के उस कालखंड में विपरीत परिस्थिति में मैंने जो कहा था, वो आज आपकी आंखों के सामने सत्य बनकर के उभरा हुआ है। इसीलिए कहता हूं, आज हिंदुस्तान, आपको बहुत कुछ कमियां नजर आती होगी। 2047 में मैं आज सपना देख रहा हूं दोस्तों, जैसा 2001-2 में मौत की चादर ओढ़ करके जब हमारा कच्छ था, तब जो सपने देख करके आज करके दिखाया, 2047 में हिंदुस्तान भी करके दिखाएगा। और कच्छ के लोगों ने, भुज के लोगों की भुजाओं ने इस पूरे क्षेत्र का कायाकल्प करके दिखाया है। कच्छ का कायाकल्प भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के बड़े शिक्षा संस्थानों के लिए, रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए एक रिसर्च का विषय है। 2001 में पूरी तरह तबाह होने के बाद कच्छ में जो काम हुआ है, वो अकल्पनीय है। कच्छ में 2003 में क्रांति गुरु श्यामजी कृष्ण वर्मा यूनिवर्सिटी बनी, तो वहीं 35 से भी ज्यादा नए कॉलेजों की स्थापना की गई। इतने ही नहीं, इतने कम समय में 1000 से ज्यादा अच्छे नए स्कूल बनाए गए। भूकंप में कच्छ का जिला अस्पताल पूरी तरह जमींदोज हो गया था। आज कच्छ में
भूकंप विरोधी आधुनिक अस्पताल है। 200 से ज्यादा नए चिकित्सा केंद्र काम कर रहे हैं। जो कच्छ हमेशा सूखे की चपेट में रहता था, जहां पानी जीवन की सबसे बड़ी चुनौती थी, वहां आज कच्छ जिले के हर घर में नर्मदा का पानी पहुंचने लगा है। हम कभी आस्था और श्रद्धा के नाते गंगा जी में स्नान करते हैं, यमुना जी में, सरयू में और नर्मदा जी में भी। और यहां तक कहते हैं कि नर्मदा जी तो इतनी पवित्रता है कि नाम स्मरण से पुण्य मिलता है। जिस नर्मदा जी के दर्शन करने के लिए लोग यात्राएं करते थे, आज वो मां नर्मदा कच्छ की धरती पर आई है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि कभी टप्पर, फतेहगढ़ और सूबाई बांधों में भी नर्मदा का पानी पहुंच सकता है। लेकिन ये सपना भी कच्छ के लोगों ने साकार करके दिखाया है।